Dear students, I am Dr. Sasikant Tamrakar from Bharati College of Agriculture Engineering. I am teaching some subjects in BTech Agriculture, and now here is videos of different subjects for you. Dear students, next is design variation of family type biogas plant. Here are number of design approved and used in the family type biogas plant. First, we have studied Khadi and village industry design. Second is PRAD, planning, research and action design, modification of the Chinese design. Then extra application of science and technology to rural area design, Murugappa Chatting Research Center design, Tamil Nadu Agricultural University dome type design, Himachal Pradesh capsule design, Kacha Pakka model of Punjab Agricultural University Ludhiana design, plug flow design, AFPRO action of food and production design, Roorkee design, Deen Bandhu design, fiberglass fixed dome design, mobile biogas plant, plastic emulsion coated, heavily insulated temperature controlled Switzerland biogas plant, and Ganesha model. All these type of designs have their own merits and demerits. They are popular in different regions depending upon the choice of the beneficiary. The geometrical configuration of the various biogas plants above listed, as earlier stated, the design of KVIC Khadi is a kind of circular mini well, whereas Deen Bandhu, the concerned bottom is somewhat hemispherical. Deen Bandhu is hemispherical design. Okay. The fixed dome Chinese type is like that of the kettle design, while what developed by Himachal Pradesh is like a capsule model. Their configuration modify the surface area available for microbial activities beside aiming of cost reduction. Some more details of commonly used biogas plants. Next we study in detail the Janta biogas plant. This is the diagram of Janta biogas plant. We have to design this type of plant. So this plant is developed by Planning, Research and Action Division of Lucknow in 1978. It is improved version of Chinese fixed dome biogas plant. Different parts are shown here. This is the foundation of this digester. This slurry is collected here, and this foundation is of concrete, and from this point to this 1000 mm maximum gas can be saved here. This is the inlet of the slurry, and after processing some time from this outlet, this slurry goes to the displacement tank, and here lower loose cover is provided on the top for the outlet of this slurry waste, and here from the top of the gas side, gas valve is provided, and this is the gas pipeline, and here the top is covered manhole, and that is sealed by the clay so that no gas can be leaked here. This type of plant is mostly used, so this is called Janta biogas plant.
the foundation is laid at the base of the underground pit. एक ऐसा गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर बराबर समतल कर लेते हैं, लेवल कर लेते हैं ग्राउंड को. उसके बाद वहां पर ये फाउंडेशन बनाते हैं. लेवल ग्राउंड which bear the load of slurry as well as the digester wall. स्लरी और डाइजेस्टर वॉल सारे का जो वहां पे लोड सह सके ऐसा अच्छा फाउंडेशन बनाना पड़ता है. डाइजेस्टर इज सिलिंड्रिकल इन शेप, कंस्ट्रक्टेड विथ ब्रिक एंड सीमेंट. ये जो डाइजेस्टर होता है वो सिलिंड्रिकल शेप का होता है एंड दैट इज कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिक एंड सीमेंट. इट होल्ड द डंग स्लरी फॉर रिटेनिंग टाइम. जितने समय बाद वहां गैस निकलेगा तब तक उसको रखना पड़ता है, सो दैट द बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड from the slurry in the digester. Next is, it should be noted that the diameter and height ratio of the digester is kept 1.75:1. The gas is stored in gas portion in the bottom, in the top portion, which is an integrated part of the plant, between dome and digester where the usable gas is stored. The height of the gas portion is above the inlet and outlet opening. तो इनलेट और आउटलेट से इनलेट ओपन रहे या आउटलेट ओपन रहे उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, गैस टॉप पोर्शन में इकट्ठा रहेगा. ठीक है, और नीचे से इनलेट आते रहेगा या आउटलेट जाते रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओपनिंग टू बिगिनिंग ऑफ द डोम एंड इज इक्वल टू द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द गैस स्टोर्ड. वो जो डोम बना रहेगा वो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गैस का कितना वहां पर वॉल्यूम स्टोर हो सकता है उसके बराबर रहेगा. एंड दैट इज 30 to 40% ऑफ द प्लांट कैपेसिटी. जो प्लांट की कैपेसिटी है उसका 30 से 40% मीन्स 1/3 के लगभग का वहां पर बना के रखते हैं, जो एक बार, दो बार, तीन बार ऐसा करके वो पूरा प्लांट कैपेसिटी को कंप्लीट करता है. एंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्लरी टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इनलेट एंड आउटलेट. और उसी हिसाब से जो स्लरी का वॉल्यूम है जो वहां पर जो कुआं पे वेल के अंदर जो रखा रहेगा स्लरी, वो वॉल्यूम से के हिसाब से भी ये बनाते हैं. देन डोम इज कंस्ट्रक्टेड ओवर द गैस पोर्शन विथ वॉल्यूम ऑफ 60% ऑफ द प्लांट कैपेसिटी. तो जो आपका 60% प्लांट कैपेसिटी है उसके हिसाब से डोम को कंस्ट्रक्ट किया जाता है. ये सब डिजाइन कंस्ट्रक्शन डिटेल्स हैं जो ऐसा जनता टाइप बायोगैस प्लांट बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इट मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड वेरी केयरफुली, इंटीग्रेटिंग इट विद डाइजेस्टर एंड गैस पोर्शन सो दैट नो लीकेज ऑफ गैस कैन बी टेक प्लेस. तो वहां टॉप पोर्शन में डोम को बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा, नहीं तो डोम के टॉप से यदि गैस लीकेज होने लग जाए तब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा. तो गैस लीकेज के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है वहां पर. द गैस आउटलेट पाइप इज फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द डोम फॉर लेइंग द लाइन. तो वहां पर टॉप पे वो गैस पाइपलाइन को लगाते हैं और वहां से जनरल पाइपलाइन जहां यूज करना है वहां तक के भेजते हैं. So the inlet and outlet portions are constructed for putting the fresh slurry inside the plant and to take the digested slurry out. The inlet and outlet are of larger size, provided on each side of the digester facing each other. If the digester is at the center, then in one side inlet and other side the outlet. Okay, portions are created. The opening to the digester for feeding the waste material and effluent outlet from it are also of larger size. They are also of bigger size, large size. The discharge of slurry out of the plant is due to pressure of the gas in the plant. So the slurry discharge because of the pressure, gas pressure created inside the digester. So the slurry is go outside to the outlet side. Over the inlet portion, an inlet mixing tank is also constructed. In the inlet side, some inlet mixing tank where the dung is mixed with the water. This type of tank is also
we have to construct. Then this type of plant have now been replaced by Deenbandhu plant in the fields. So with some modifications or new thing, the Deenbandhu plant are used. Second type is Deenbandhu बायोगैस प्लांट. ये बहुत कम कीमत वाला प्लांट है, सस्ता प्लांट है, जिसे कोई भी लगा सकता है. दिस इज ऑल्सो अ फिक्स्ड डोम प्लांट डेवलप्ड बाय एक्शन फॉर फूड प्रोडक्शन AFPRO न्यू दिल्ली. इन्होंने बनाया हुआ है. ठीक है, ये भी फिक्स्ड डोम डिजाइन का है. इट इज अ वेरी लो कॉस्ट बायोगैस प्लांट. बहुत सस्ता होता है ये. द प्रिंसिपल of working of this plant is same as that of the जनता मॉडल, जो हमने अर्लियर स्टडी किया हुआ है. जनता मॉडल मेन प्रिंसिपली इसका सेम है, एक्सेप्ट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनलेट एंड इंट्रेंस एंड डाइजेस्टर. यहाँ पर क्या है, ये देखिए कंस्ट्रक्शन लोग इसका जो आपको इसका जो बेस होता है वो भी डोम से जितना है उतनी बड़े का बना दिया. फिर यहाँ बीच वाले भाग में डाइजेस्टर हो गया. ये इनलेट के लिए मिक्सिंग टैंक यहाँ पर बनाया हुआ है शुरुआत में, और इसको ये गैस पास के ऊपर लगाया हुआ है. और डोम से यहाँ पे गैस इकट्ठा होगा तो उससे ऊपर लगा हुआ है. और इसका इनलेट लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग जो है ये बीच में स्लरी जहाँ पे आएगा वहां पर है. तो यहाँ पर ये स्लरी बहते बहते आ जाएगा. इसे गैस लीकेज यहाँ से नहीं होगा, गैस यहीं से जाएगा. और फिर ये दूसरा आउटलेट साइड जो है, ये स्लरी गैस के प्रेशर के कारण ये स्लरी यहाँ से आउट हो जाता है. इसका आउटलेट वाला हाइट कम है और ये इनलेट वाला ये हाइट ज्यादा है. और बीच में सेंटर से डोम से ये बायोगैस का पाइपलाइन निकला हुआ है विद दिस वाल्व लगा हुआ है यहाँ पर. ठीक है, ऐसा ये आपका दीनबंधु बायोगैस प्लांट है. द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ दिस प्लांट इज सेम एज दैट ऑफ जनता एक्सेप्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनलेट, इंट्रेंस एंड डाइजेस्टर. इनलेट का इंट्रेंस और डाइजेस्टर थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है. द फाउंडेशन ऑफ दिस प्लांट इज कंस्ट्रक्टेड इन द सेगमेंट ऑफ स्फेरिकल शेप. तो जो स्फेरिकल शेप होता है वैसा रहेगा, मीन्स स्ट्रेट नहीं आएगा. बॉटम भी ऐसा कर्व शेप में, स्फेरिकल शेप में बना हुआ रहेगा. ऑन द आउटर पेरिफेरी ऑफ दिस फाउंडेशन द डोम शेप डाइजेस्टर इज कंस्ट्रक्टेड विद सेम बेस डायमीटर. तो वो जो बेस का डायमीटर आ रहा है उसी डायमीटर के हिसाब से ऐसा डोम शेप वाला भी बनाया जाता है यहाँ पर. Here, in this way, digester, gas portion and dome look as a single unit. Okay. The surface area of biogas plant is reduced with same digester volume, reducing the earthwork and cost of construction. ठीक है, ये सब यहाँ पर हमारे कम हो जा रहा है. reducing the earthwork and cost of construction, ये reduce हो जा रहा है इसलिए सस्ता है. sacrificing the efficiency, जबकि इसका efficiency सेम रहेगा जनता वाले की जैसा ही. The higher compressive strength of the brick masonry and concrete make it safe structure as the plant is always under compression. ठीक है, प्लांट अपना कंप्रेशन में चलते रहता है, इस कारण ये ब्रिक मेसनरी एंड कंक्रीट बराबर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वहां पर बना हुआ रहता है. A spherical structure loaded from the convex side will be under compression and therefore the internal load will not have any residual effect on the structure. So here the spherical structure loaded from the convex side will be under compression and therefore the internal load will not have any residual effect on the structure. At the top of the foundation, a window opening is kept outlet portion in the outlet portion for outward movement of the digester slurry. तो जो डाइजेस्टर बाहर निकल रहा है उसको देखने के लिए वहां पर एक आउटलेट पोर्शन में एक विंडो की ओपनिंग यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है. ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपके जनता वाले से थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया हुआ है. नेक्स्ट, द एस्बेस्टस सीमेंट पाइप of 15 centimeter diameter is used for inlet instead of separate opening. The pipe is embedded in the digester wall at the fixed position
just opposite to the outlet opening to avoid short circulating of fresh material and digested slurry. The volume of outlet is increased to produce requisite gas pressure through the weight of the displaced slurry. At the top of the dome, a gas outlet pipe is fixed, as the case of Janta plant. So this is similar to Janta biogas plant. Next, floating gas holder plant. These plants are different type where the gas holder tank is floating. Here biogas is stored in a drum which moves up and down on a guide according to quantity of gas stored in it. The gas holder rests on a guide frame which is fixed in a digester wall. The drum may be made of steel, ferrocement, HDPC or fiberglass. The pressure of gas in the floating drum type biogas plant is always constant, which is equivalent to gas holder over the unit area. यहाँ पे मेन ऐसा है, जो स्लरी है, स्लरी के ऊपर में ड्रम रखे रहते हैं, उस ड्रम पे गैस इकट्ठा होता है, तो वो ड्रम को उठाना भी पड़ता है, गैस की प्रेशर से उठता है. सो द प्रेशर ऑफ गैस इन द फ्लोटिंग ड्रम टाइप बायोगैस प्लांट इज ऑलवेज कांस्टेंट. तो यहाँ पर जो ड्रम में प्रेशर होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, विच इज इक्वल टू गैस होल्डर ओवर यूनिट एरिया. इट कैन बी इंक्रीज्ड ऑल्सो by putting additional weight of gas holder. The side of gas holder remain in slurry. जो गैस होल्डर के जो साइड्स होते हैं वो स्लरी के अंदर रहते हैं, to seal the leakage of gas to the atmosphere. तो वहां पर से लीकेज नहीं हो सकता एटमॉस्फेयर में. The cost of this plant is more as the cost of gas holder. ये कॉस्ट इनका ज्यादा होता है. As the cost of gas holder itself is high, एक अलग से उनको गैस होल्डर बनाना पड़ता है. Besides, it require regular check and maintenance. फिर गैस से उस स्लरी पे वो बॉक्स से रिलीज मत हो, ड्रम से गैस लीकेज मत हो, ये हमेशा चेक करते रहना पड़ता है. तो इसके लिए रेगुलर चेकअप एंड मेंटेनेंस वहां पर जरूरी है. इसमें आपके टाइप हैं. फर्स्ट टाइप है KVIC, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. दिस इज खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ये इसका नाम है, द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन. द डिजाइन वॉज डेवलप्ड एंड प्रिफर्ड इन इंडिया इन 1954. ये 54 से स्टार्ट हुआ है. दिस वॉज टेकन अप फॉर प्रोपोगेशन इन द विलेज इन 1962 बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन बॉम्बे. ये खादी एंड विलेज कंपनी बॉम्बे वाले हैं, उन्होंने इसको लिया और 54 में इंडिया बनने के बाद में इंडिया के गांव-गांव में जाकर इसको प्रचारित किया और ऐसा बनवाते गए वो लोग. इसकी कैपेसिटीज बहुत वास्ट है. 1 क्यूबिक मीटर से लेकर 140 क्यूबिक मीटर गैस पर डे में छोटे से छोटा से लेकर बड़े से बड़ा तक का इसमें बनाया जा सकता है. वैरायटीज में बहुत ज्यादा थी, पर कॉस्ट ज्यादा के कारण ये थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत हो रही थी. In KVIC plant, the gas is stored in MS drum, mild steel drum of storage capacity of 30 to 40% of plant size. जो plant size बनाया हमने, मान लो हमने 140 क्यूबिक मीटर का plant size बनाया है, तो उसका 30 से 40% का उसका MS ड्रम का कैपेसिटी होना चाहिए. ठीक है, जितने का भी बनाया हम लोग 100 का बनाया है, 100 क्यूबिक मीटर का, तो उसका 30 से 40% का आपको MS ड्रम का स्टोरेज साइज होना चाहिए. ठीक है, at the 30-40% of plant size at a pressure of about 10 centimeter of water column. 10 centimeter water column का जो प्रेशर चेक करते हैं वहां पे होना चाहिए, which is sufficient to carry it up to a length of 20 meter to 100 meter depending upon size of the plant. The next type of plant is Pragati Design Biogas Plant.
ये आपका प्रगति डिजाइन बायोगैस प्लांट है। यहाँ पर ये नीचे बोल्डर का फाउंडेशन है, देन ये कॉन्क्रीटिंग किया हुआ है, ये डोम शेप जैसा ही है। यहाँ पर ये मिक्सिंग टैंक है, मिक्सिंग टैंक से यहाँ से इनलेट आता है मिक्स होने के बाद में, जो इसके बाद यहाँ पे घूमता है। देन ये आउटलेट टैंक है और यहाँ से ऊपर यहाँ गैस यहाँ पे इकट्ठा होता है जो इस टैंक को ऊपर करता है, और यहाँ से गैस आउटलेट निकला हुआ है, ये गैस आउटलेट निकला हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का इसका डिजाइन है। द डिजाइन हैज बीन डेवलप्ड बाय यूनाइटेड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिसर्च प्रोग्राम UNDARP पुणे in order to have a cheaper floating drum biogas plant। तो ये बायोगैस प्लांट चीपर है और दिस इज ऑल्सो फ्लोटिंग ड्रम है। ये जो ड्रम है ये ऊपर नीचे फ्लोट होता रहता है, इसके प्रेशर के हिसाब से, जो गैस का प्रेशर मिलता है उसके हिसाब से ये वाला ये गैस ड्रम यहाँ पर फिटेड है। इन प्रगति बायोगैस प्लांट द डेप्थ ऑफ pit is less than KVIC plant, so that it can be constructed in hilly and high water table area। ठीक है, तो इसका साइज पिट यदि गहरा नहीं होगा तो उसको हम हिली एरिया में, बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर में कम खोद सकते हैं, खोद नहीं सकते ज्यादा अच्छे से, तो जहाँ कम खोद सकते हैं वहां पर हाइट कम होने के कारण, ठीक है, इस हाइट कम होने के कारण इसको कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है इन द हिली एंड हाई वाटर टेबल एरिया। जहाँ पे ज्यादा जल्दी गहरे में पानी आ जाता है ना, थोड़ा सा गहरा खोदते हैं पानी आता है, ऐसे टाइप की जगहों पर यूज कर सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रगति प्लांट इज 20% लेस देन द KVIC खादी प्लांट। सो द फाउंडेशन ऑफ दिस प्लांट इज कॉनिकल शेप। फाउंडेशन जो है वो कोनिकल शेप का होता है, विद डिफरेंस of 1 feet between outer periphery and a center, so as to reduce the earth and digester wall work। ठीक है, ऐसे शेप में होता है। ठीक है, जो बेस जो है वो भी कोनिकल शेप में रहता है। ठीक है, तो जो आपका डाइजेस्टर होगा वहां पर वो खुदाई करने के लिए आउटर पेरिफेरी 1 फीट ऊंचा रहेगा और सेंटर जो है वो गहरा रहेगा। इस सेंटर so as to reduce the earth and digester wall work। ठीक है, तो इतना हमको अर्थ वर्क और डाइजेस्टर वॉल वर्क नीचे जमीन में गड्ढा करके कम करना पड़ेगा। इट इज कंस्ट्रक्टेड एट द बेस ऑफ द पिट विथ सीमेंट, सैंड एंड कंक्रीट। तो उसका जो बेस बनाते हैं वो सीमेंट, सैंड और कंक्रीट का बना हुआ रहता है। कीपिंग द साइड कंडीशंस इज व्यू सो इट कैन बियर द लोड ड्यू टू वेट ऑफ स्लरी इन द डाइजेस्टर। तो वहां पर जो है डाइजेस्टर और उसका वेट सारे को वो बेस सह सके ऐसा बनाया जाता है। ठीक है, सीमेंट, सैंड और कंक्रीट से सबसे मिलाकर उसको प्रॉपरली बनाया जाता है। द डाइजेस्टर स्टार्ट फ्रॉम फाउंडेशन इन डोम शेप। तो उसका फाउंडेशन है वहीं से ऐसा वो डोम शेप में स्टार्ट हो जाता है। देयर बाय रिड्यूसिंग द कंस्ट्रक्शनल एरिया फॉर सेम डाइजेस्टर वॉल्यूम, thus reducing the cost of the construction of the plant। तो ये क्या बोल रहे हैं कि सेम वॉल्यूम के लिए यहाँ पर कम करना पड़ता है, हमको खुदाई कम करना पड़ता है, कंक्रीटिंग कम करना पड़ता है। ठीक है, सो द डाइजेस्टर स्टार्ट फ्रॉम फाउंडेशन इन डोम शेप, देयर बाय रिड्यूसिंग द कंस्ट्रक्शन एरिया। जो कंस्ट्रक्शन एरिया यदि कम हो जाएगा तो उसका कॉस्ट कम हो जाएगा। हाँ, फॉर द सेम डाइजेस्टर वॉल्यूम। तो जो पहले वाला जो होता था खादी एंड विलेज इंडस्ट्री वाला, उससे यहाँ पर वॉल्यूम कम लगता है। ओके, देन वी विल डिस्कस मोर ऑन द नेक्स्ट क्लासेस। थैंक यू।